So the electronic configuration, I have to choose again. Yeah. The electronic configuration is 1s2 and 2s2. For boron, it is 1s2, 2s2, 2p, 1. And for carbon, it is 1s2, 2s2, 2p. Let's say आपका z ऑर्बिटल में है और आपका x ऑर्बिटल में है, जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी z ऑर्बिटल कह सकते हो, ठीक है. So this is the electronic configuration of the elements. So अगर हम electronic configuration ध्यान से देखें, तो बेरिलियम जो है आपका, सिंस यू कैन से दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. जो बातें आपने बताई है, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, बट मैं आपको आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट. So if you see the electronic configuration of the beryllium, then you can see here that beryllium has all the orbitals filled, 1s2 and 2s2. So it should behave like a noble gas. Why noble gas? क्योंकि इसके पास कोई भी half filled orbital नहीं है, तो you can say that there is no but you can say there is no half filled orbital or there is no empty space in the orbital, क्योंकि 2s के बाद 2p आएगा, 2p बिल्कुल completely vacant है, और 2s में there is no vacant space, so you can say that it should behave as a half filled orbital. Similarly, if you see the boron, अगर आप boron देखो, तो it means that beryllium should not form any kind of a bond, क्योंकि completely filled है, तो there is no need for the formation of bond. तो beryllium के compound should not be there if you see the electronic configuration, ठीक है. Similarly, if you talk about the boron, then boron में you have 2pz1. So 2pz1 it means that boron should form a boron, it is a univalent element कह सकते हो. So it should form a compound like जिसमें एक bond बनेगा. एक bond बनेगा मतलब like आपके पास BH बन जाएगा single bond, या BF बन जाएगा, क्योंकि it needs only one electron. 2pz को अगर हम 2px 2py भी नहीं कंसिडर करते हैं, तो 2pz में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों एक ऑर्बिटल पूरा फिल हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग 2pxyz, आई एम जस्ट सेइंग फॉर 2pz. सो BH बन गया, BF बन गया, तो इस तरह के कंपाउंड्स बनने चाहिए. Similarly, अगर आप कार्बन की electronic configuration if you see, then again it says that only one electron is needed here and one electron is needed here. So carbon should form a compound like divalent compound बनाना चाहिए, like CCl2 or like CH2. These type of compounds it should form. But you all know that it is not the case actually, because you know beryllium is not a noble gas, आपको पता है. और जो boron है, it forms trivalent compounds. BH3, BF3, BCl3 आपको पता है it forms. And carbon भी आपका divalent नहीं है, carbon आपका tetravalent है. And you know the compounds of carbon as well, that is a CH4 it forms, methane or CCl4. तो इस तरीके से आपको पता है कि it forms the tetravalent compounds. So all these things, how you know it is not a univalent or bivalent, so all these concepts can be explained with the help of a topic that is a hybridization, ठीक है. This hybridization topic is hypothetical. ये आप ये नहीं कह सकते कि हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं या फिर हम थियोरेटिकली बता रहे हैं. मतलब एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जो है आपका एक हाइपोथेटिकल टॉपिक है टू एक्सप्लेन द how the molecules are basically forming. जैसे CH4 है, CH2 नहीं होता, CCl4 है, CCl2 फॉर्म नहीं हो रहा. ऑल्दो CCl2 फॉर्म होता है, उसमें रेडिकल्स वाला फंडा है, बट अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे. तो CH4 फॉर्म हो रहा है, CCl फॉर्म हो रहा है, BH3 फॉर्म हो रहा है. तो ये हाइपोथेटिकली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यू कैन एक्सप्लेन कि हाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग. तो ये एक्सपेरिमेंटली आप नहीं कह सकते हो. little bit you can say about theoretical, but more of it is hypothetical concept. Hybridization आपका hypothetical concept है, ठीक है. अब जैसे अगर हमें बताना हो कि बेरिलियम है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बेरिलियम जो है it is not a noble gas. सबको पता है it is not a noble gas. So it is having electronic configuration of 1s2 and 2s2, ठीक है. So what will happen, बेरिलियम का जो आपका 1s को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, 2s की अगर हम बात करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में if it is 2s2 here, then in excited state आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम 2s to 2p. तो 2s इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में आ जाएगा. नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू पीपल. यू टेल मी how the electron get excited from 2s to 2p, because to excite the electron from 2s to 2p you need an energy. Now can anybody tell me from where this energy comes? Why electron get excited from 2s orbital to 2p orbital?
मैम जब कोई एलिमेंट बॉन्डिंग के लिए जब एटम्स अप्रोच करते हैं वन बाय वन, तो उस टाइम पे एनर्जी, सॉरी दोबारा बोलो। मैम कोई एलिमेंट अगर बेरिलियम को अप्रोच करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और भी कॉन्सेप्ट से मतलब एनर्जी आ जाएगी इसके बाद। रिपल्शन होगा व्हेन टू एटम्स अप्रोचेस, और यू कैन से जैसे अगर हम बात करते हैं BeF2 अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी कहाँ से आ रही? व्हेन बेरिलियम एंड फ्लोरीन दे अप्रोचेस ईच अदर, देन देयर इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड. There is some amount of energy which is released, and that energy is utilized for the excitation of electron from 2s orbital to 2p orbital. Is it clear? तो बेरिलियम हैज अ टेंडेंसी टू शो द कोवेलेंसी ऑफ 2. बेरिलियम आपकी कोवेलेंसी 2 दिखा सकता है कब? जब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल. ठीक है, अगर हम सिंपल 1s to 2s की बात करते हैं तो इट इज जीरो वैलेंट यू कैन से. But when the electron jumps from 2s orbital to 2p orbital, in that case, beryllium has a tendency to show the covalency of 2. अब ये कब excitation होगा? Excitation will take place when beryllium and fluorine they approaches each other. There is a certain amount of energy which is released, and that energy is basically utilized for the promotion of electron from 2s orbital to 2p orbital. Is it clear? अब एक कंसेप्ट तो ये था कि एनर्जी आती कहाँ से. दूसरा पॉइंट ये है कि 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, है ना? 1s 2s 2p. अगर हम उसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में तो एनर्जी विल बी सिमिलर, और 2s 2p में इतना डिफरेंस नहीं होगा. बट हम हाई ऑर्बिटल की बात करते हैं 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d 3p और 3d में डिफरेंस ज्यादा होता है. ऐसे ही 4s 4p की बात करते हैं डिफरेंस बढ़ता जाता है. तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि 2s and 2p ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज. तो अब फिर कैसे बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि इसका मतलब एक बेरिलियम फ्लोरीन का बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर होगा, जो भी आप लोगों ने बताया, एक बेरिलियम फ्लोरीन का बॉन्ड जो होगा वो वीकर होगा, या जैसे भी होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर वीकर. और यू कैन से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी दोनों की डिफरेंट होगी, बट ऐसा नहीं होता, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है. इस कंसेप्ट को कहाँ से एक्सप्लेन करते हैं? इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि 2s and 2p ऑर्बिटल जो होता है आपका बेरिलियम का, दे hybridize मतलब they overlap together to form the formation of new orbitals which is called as a hybrid orbital. इसको मैं आपको अगर आपको एक डायग्राम से बताना चाहूँ तो I can show you by one diagram. मतलब अगर आपका ये एनर्जी आपका जो स्ट्रेट लाइन है, you can write it as energy of your compound form. जो कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है उसकी एनर्जी इज दिस, right? And this is the energy of the beryllium in the ground state. This is energy in the ground state. ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि बेरिलियम की हमारे पास है 1s2 और 2s2 in the ground state. आप इस तरीके से लिख सकते हो. Then this is the energy in the excited state. ठीक है, having the electronic configuration 1s2 2s2 1s2 2s1 and 2p1. Then हमारे पास अभी हमने बताया कि 2s and 2p आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं and leads to the formation of a hybrid orbital कह लो या hybrid state कह लो. तो this is a hybrid state is being formed and having the sp hybridization. ठीक है, so this is your energy which is needed to excite the electron from 2s to 2p orbital. ठीक है, and this is the energy which is there when s and p orbital they hybridize, leads to formation of the hybrid state. So you can say that this much energy is involved when a compound is being formed. So this, let's say this is your A and this is your B or C, जो भी आप कह रहे हो. So this is energy which is involved in the formation of a compound. But similarly अगर आपके पास हाइब्रिड स्टेट फॉर्म नहीं कर रहे हो तो दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इन्वॉल्व. तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, और कह सकते हो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा मतलब कि नेगेटिव में ज्यादा है, इट मींस द कंपाउंड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कंसेप्ट इस तरीके से है. तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, यू कैन से, फ्रॉम द हाइब्रिड स्टेट,
and this much amount of energy is involved when you're talking about the formation in the excited state. So since hybrid state की energy जो है it is more, इसलिए आपका जो कंपाउंड फॉर्म जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एनर्जी इज इन्वॉल्व मोर है इन केस ऑफ द हाइब्रिड स्टेट, देयरफॉर दैट कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल अगर हम हाइब्रिड स्टेट कंसीडर करते हैं तो, ठीक है. सो बी आप ये कह सकते हो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली रिलीजिंग, ए बी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली रिलीजिंग when a compound is being formed from the hybrid state. In that case, more amount of energy is released. It means that your compound is more stable as compared to the compound which is formed involving excited state. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो hybrid orbital से it is stability is more. Again, you can say more amount of energy released means the more stability as compared to the other one. राइट तो यहाँ पे आप इसे ए बी कह लो और यहाँ पे आप इसे किसी और नाम से डिनोट कर सकते हो, ये सी डी कह सकते हो आप इसे. तो ए बी की एनर्जी जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रही है सी डी से, दैट मींस योर दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर वन. समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके सो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन जो है जो आप लोगों ने अभी बताई थी वही डेफिनेशन यहाँ पे है that the concept of free distribution of energy is different orbitals of an atom associated with different energies to give new orbitals. So you have 2s orbital and you have 2p orbital. So these 2s and 2p orbital they are different orbitals associated with only a single atom, that is of beryllium, and they basically they lead to formation of a new type of orbitals. ठीक है, न्यू ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म होते हैं और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, और यू कैन से सिमिलर एनर्जी है, और यू कैन से इक्विवेलेंट एनर्जी है. ठीक है, सो दोज ऑर्बिटल्स को हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. उन ऑर्बिटल्स को वी आर सेइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एंड जो कंसेप्ट है और यू कैन से द फिनोमिनन जो है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन. द कंसेप्ट इज योर हाइब्रिडाइजेशन. And after mixing of orbitals, new orbitals which are being formed, they are of equivalent energy or similar energy you can say. So these equivalent energy orbitals are called as a hybrid orbitals. Right? Is it clear? Yes, ma'am. Yes ma'am. So this is basically concept of hybridization. कि hybridization concept कहाँ से आया है, how the basically bonds are being formed और एनर्जी हमारी क्या इन्वॉल्व होती है इसके अंदर. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसमें हमारे पास किस तरीके से फॉर्म होता है अगर हम देखना चाहें तो आपके पास एस और पी में यू हैव योर एस ऑर्बिटल. ठीक है, एक्स वाई जी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. देन आपका पी ऑर्बिटल भी मिक्स हो रहा है, सो पी जेड हमने बना दिया इस तरीके से, लेट्स से दिस इज जेड डायरेक्शन. ठीक है, तो हमारे पास एस ऑर्बिटल है एंड हमारे पास पी जेड ऑर्बिटल है. दे विल हाइब्रिडाइज टुगेदर टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होगा आपका, इस तरीके से. तो अगर आपका ये प्लस है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, so this is plus, this is plus, this is minus, this is minus. Is it clear? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एंड वन मोर थिंग मुझे अभी याद आया, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन कुछ क्वेश्चंस दिए थे. हाइब्रिडाइजेशन कह रही हूँ इसके रेजोनेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज के, आप लोगों ने अटेंड करे? कि मैंने तो उसके पूछने बोल रहे, आप लोगों ने भी किसने भी नहीं बोला. एनीवेज मुझे एकदम से दिमाग में आया तो इसलिए मैंने बोला. एनीवेज तो दिस इज योर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, एंड एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ये है और इसमें हमारे पास अब एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा बेरिलियम का बन गया है. ठीक है, दिस इज एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द बेरिलियम. नाउ इट विल कंबाइन विद द px py एंड pz ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन एटम. तो अब आपके पास मान लो, एक सेकेंड रुको, हाँ, let's say this is your x direction, this is your y direction and this is your z direction. मैं एक में ही बना के दिखा रही हूँ, I'm not drawing it अलग अलग नहीं बना रही हूँ. ठीक है, तो ये आपका x है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे आपको x बताया था ना.
तो लेट से मैं डायरेक्शन बता लिख देती हूँ इसमें x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z, ठीक है। सो दिस इज योर x ऑर्बिटल, दिस इज योर y ऑर्बिटल, एंड ये विदाउट एनीथिंग दैट इज अ z ऑर्बिटल, ठीक है। तो x ऑर्बिटल कंबाइन नहीं करेगा, y कंबाइन नहीं करेगा, z कंबाइन करेगा। सो दिस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस बेरिलियम एंड आपका px py pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, they will combine, lead to formation of this hybrid orbital, that is this and this, right? And then you can draw it like this. ये बुक में आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ये एज इट इज रहेंगे बिकॉज दे आर नॉट ओवरलैपिंग। इसमें भी हमारे पास एक्स और वाई वाले एज इट इज रहेंगे बिकॉज दे आर नॉट ओवरलैपिंग। सिर्फ ओवरलैपिंग किस में हो रही है हमारी, जेड में, तो ये एक्स वाला भी एज इट इज रहेगा, वाई वाला भी एज इट इज रहेगा। इसमें भी एक्स वाला एज इट इज रहेगा, वाई वाला भी एज इट इज रहेगा। सिर्फ ओवरलैप कौन कर रहा है, सिर्फ जेड वाले हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके पास बन गया है दिस थिंग, इट विल रिमेन एज इट इज। सो समझ में आ रहा है। तो ये आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेरिलियम के, एंड दे ओवरलैपिंग विद द z ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। समझ में आ रहा है। एक बार इसका ड्रॉ कर लो। तो ये मैंने आपको जो बताया है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बताया है बेरिलियम के लिए। तो क्या आप लोग sp2 बना सकते हो अपने आप से बोरोन के लिए, लाइक BCl3 या BF3 जो भी कंसेप्ट ले सकते हो। और BF3 ले लो, BCl3 का मतलब BF3 का। तो कैन यू ड्रॉ द एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स में डायग्राम कैसा बनेगा। एंड s और p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। कैन यू ड्रॉ इट, एक बार ड्रॉ करके ट्राई करो। एंड देन हाउ उसमें 3 बन जाएंगे। हाँ 3 बनेंगे क्योंकि 1 s होगा, 2 p ऑर्बिटल होंगे, तो 3 आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। और BF3 के लिए ट्राई करो एक बार, जैसे मैंने आपको BF2 का बताया है ऐसे BF3 का इट विल रिमेन द सेम। सो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ आपको। एनर्जेटिक्स डायग्राम कैसे बनेगा वो भी आप बता सकते हो खुद से। डायग्राम जो ये वाला इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये वाले की।
if you are done with sp2, you can draw for sp3 as well. I will show you how it will form, but you can try the combination of one s orbital and 3p orbital. 3p orbital means px, py, pz. All three will combine. So you can draw how these four will combine and how the new four hybrid orbitals sp3 are being formed. Okay, so have you done it? Chandar? मैम sp2 वाला कर लिया, sp3 का हाफ हो गया। दिखाओ sp2 में क्या किया है। कैसे देखो? एक बात बताओ, आप लोगों का जो ये है, क्या बोलते हैं, ये कन्वर्सेशन वाला है, कांट यू सेंड द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द इमेज, लाइक एक जो भी आप लिख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इसमें? अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा हाँ, अटैच फाइल करने का इसमें ऑप्शन है तो सही, भेज सकते हो चंदर? पर अगर मैम फोन में पीसी पे क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं कैसे भेजूं? क्या 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 फोन से कर रहे हो? पीसी से कर रहा हूँ, उस पे कैसे भेजूं? अरे फोन नहीं है हाथ में? अच्छा, फोन से करोगे तो फिर तुम्हें फोन की वो करना पड़ेगा इंस्टॉल। प्रिंट स्क्रीन करके कर सकते हो। नहीं समझ में आया? चलो थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा प्रिंट स्क्रीन पे करके, देन यू हैव टू पेस्ट इट ऑन समवेयर लाइक वर्ड पे या पेन पे पेस्ट करके, देन ओनली यू कैन सेंड। एनीवेज ऐसी वीडियो ऑन करके दिखाओ। चलो चंदर, अरे आवाज कहाँ गायब हो गई तुम्हारी? मैम ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट। विजिबल है मैम? ठीक है, तो बोरोन क्लोरीन BF2, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। ठीक है, तुमने एक जेड ऑर्बिटल ही दिखाया है, पर हम एक्स और वाई भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सबको दिखाई दिया है, सिर्फ मुझे ही दिखाई दिया है? सबको दिखाई दिया होगा, ये तो देखा है सबने। तुम्हारे उस पर कोई वो ही नहीं कर रहा है। चलो फटाफट से एक बार इसे देखते हैं क्या। सो एक सेकेंड, या so you are having s orbital and you are combining it with the 2p orbitals. तो 2p orbitals हमारे पास, लो एक ऑर्बिटल ये है in x direction, वन ऑर्बिटल in z direction। डायरेक्शन में दिखा के दिखा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये आप ये x ले लो,
इसको आप Z ले लो, that they both will combine. 3 sp2 hybrid orbital will be formed. It will be like this and this. ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा. This is like this. So you can show it like plus 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 and minus minus minus. So this is 3 large lobes and 3 small lobes combined, and you will get 3 sp2 hybrid orbitals. ठीक है? And these hybrid orbitals, this will combine with the px, py, pz orbital of your fluorine atom. So px will remain as it is. You can say py भी आपका as it is रहेगा. ठीक है? And pz आपका overlap करेगा, तो ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है. डायरेक्शन आप दिखा सकते हो. ठीक है? So the orbital which is being formed will be, it will be like this. ये आपका इस तरीके से ये आएगा sp2 hybrid orbital, and it will be like this, plus 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 minus minus minus. Then this orbital will combine. One will be bigger lobe, one will be smaller lobe. X and Y will remain as it is. So Z orbital ही combine करेगा. या आप सिंपली Z भी दिखा सकते हो, मत दिखाओ अगर आपको ये नहीं दिखाना तो सिंपली इस तरह से भी दिखा सकते हो, बिकॉज X और वो तो ओवरलैप कर ही नहीं रहे हैं. तो यू कैन सिंपली शो इट लाइक दिस अगर कंफ्यूजन होती है तो. यहाँ मैंने तीनों ऑर्बिटल ओवरलैप करके दिखा दिए. यहाँ पे आई हैव शोन जस्ट pz orbital only, not px and py. And what about the energetics? एनर्जी वाला टर्म कैसे बनाओगे? That will also remain the same जो मैंने पहले बताया था. Let's say this is energy of the BeF2 in the when the compound is being formed. ठीक है? And this is energy in the ground state. This is energy in the excited state. This is energy in the hybrid state. ठीक है? So ये excited state में this much amount of energy is utilized. Then this is your this is लिख लेती हूँ, ground state की energy है, excited state की energy है, hybrid state की energy है. ठीक है? So you can write it like this: energy in ground state, excited state, hybrid state. ठीक है? The things are same. So this is the amount of the energy which is involved in the formation of your in the formation of your BF2. I mean sorry, BF3. BF2 नहीं बनेगा, BF3 बनेगा, ये BCl3 बनेगा. So BF3 में this much amount of energy is involved. So large amount of energy is basically released. It means that your excited hybrid state से जो energetics है, that will be the most stable. ठीक है? अच्छा, next हमारे पास है for sp3. किसने बनाया sp3 का? इसने भी नहीं बनाया. मैम इथेन का ट्राई किया है. इथेन का? यस मैम. अरे तुम CH4 छोड़ के तुम मिथेन पे चली गई. दिखाओ चलो क्या कर रहा है. वीडियो ऑन करो. नेक्स्ट स्लाइड में क्यों नहीं जा रहा अब? दिखाओ कौन बोल रहा है. विजिबल नहीं हो रहा. नहीं विजिबल नहीं हो रहा. तुमने ओपन कर दिया वीडियो वीडियो? तो ऑन किया. यस मैम. विजिबल है मैम. विजिबल है. एक्चुअली मैंने अपने लैपटॉप को फोल्ड करा है थोड़ी देर के लिए, तो मेरे को अभी विजिबल नहीं हो रहा है ये. आई डोंट नो, मुझे विजिबल नहीं हो रहा है. या तो मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आई हैव टू गो हियर. हाँ, नाउ इट इज ओके. थोड़ा दूर करो, थोड़ा दूर करो. अरे तुम्हारा कैमरा तो बहुत ही ब्लर्ड है सृष्टि. दूर करो बच्चे, तुम बहुत पास कर रही हो, बहुत क्लोजअप से वो इमेज बिल्कुल ब्लर्ड, मुझे ढंग से दिख ही नहीं रही है. हाँ, नाउ इट इज ओके. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो अगर तुम इथेन का बना सकते हो फिर तुम इथेन का तुम आराम से कर लोगे. ऐसे ही होगा, बस उसका हाफ करना है. ठीक है, गुड. now I have to go back to my slide. Yeah. So अगर हम सिंपल देखें, so you have your
just a second. Yeah. So you have your 1s orbital, right? Direction you can show 1s orbital you are having x, y, y, z, and then you have 3 p orbitals. So let's say this is your one orbital, this is your other orbital, this is your one more orbital, right? So these are your 3 orbitals in x, y, z direction. ठीक है, डायरेक्शन आप दिखा सकते हो, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड स्ट्रेट होना चाहिए था z डायरेक्शन. So 4 sp3 hybrid orbitals are formed, tetrahedrally बनेंगे. So that will be like this. 1, ठीक से बना लेना एक बार, ये इस तरीके से करके कुछ बनेगा. Then you have your this 4 small lobes. So this will be plus, 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 minus, 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 minus. So these 4 orbitals, they will overlap. अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो they will overlap and they lead to formation of, यही बना रही हूँ मैं, this is for hydrogen, 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 1s orbital. So this type of overlapping will take place and you will have your ये यहाँ पे आ जाएगा, you will have your 4 formation of the methane molecule. ऐसे इथेन का जैसे इसने बताया सृष्टि ने, सिमिलरली इथेन का होगा आपका, बस उसमें इस वाले स्ट्रक्चर को डबल कर देना है, it will remain the same. Anyways, so what we have studied here in the concept of hybridization is that हमने देखा है कि the electron which is there in the ground state, that electron will get promoted or they get jump to the higher excited state, ठीक है, and that energy comes from the when 2 atoms approaches each other, so there is a release of energy and that energy is basically utilized for the formation of the your bonds between the atoms. So you can say mixing of orbitals takes place and after mixing the new hybrid orbitals are being formed and these hybrid orbitals they have equivalent energy. आपके उसके energy जो होती है that is equivalent, ठीक है. So that जो bond form होते हैं that is hybrid bonds you can say, and the orbitals which are being formed they are called as a hybrid orbitals, ठीक है. One more point here I would like to say that number of hybrid orbitals formed is always equal to number of atomic orbitals overlapping or combining, ठीक है. जितने अगर s और p ओवरलैप कर रहे हैं, एक s और एक p कर रहा है, तो आपके पास दो ही आपके पास मतलब कि दो ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे. अगर एक s कर रहा है 3 p कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे. तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ atomic orbitals combining during your hybridization concept, ठीक है. And हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके अंदर आपके पास जो आप स्टेबिलिटी की जो भी चंदर बात कर रहा था कि जो स्टेबिलिटी होती है बॉन्ड्स की, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं दे आर मोर स्टेबल. व्हाई? बिकॉज उसमें ओवरलैपिंग जो होती है बहुत बेटर होती है. इनमें जो आपकी ओवरलैपिंग होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में और जो आपका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में और जो आपके दूसरे एटम्स के साथ, जैसे CH4 में एक s और 3 p हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करा है. अब नाउ इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो वो होगी ओवरलैपिंग होगी विद द 4 हाइड्रोजन एटम्स, देयर विल बी मोर. तो यू कैन से स्टेबिलिटी जो होगी सिस्टम की वो उतनी ज्यादा होगी, ठीक है. तो आप एक तरीके से इस तरह से आप स्टेबिलिटी बता सकते हो. अगर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं बता रहे हो, आप बता रहे हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इट इज ओवरलैपिंग बेटर विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो उसमें स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है. अगर एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती है बिकॉज दे हैव द डिफरेंट एनर्जीज. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट नहीं होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है CH4 के केस में. अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट कंसेप्ट इज इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अभी तक हमने सिर्फ इक्विवेलेंट की बात की है. इक्विवेलेंट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट. ये पेपर में क्वेश्चन जो आता है ये इसी में से ही पूछते हैं, ये इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब आप लोगों ने इक्विवेलेंट तो पढ़ लिया. इक्विवेलेंट मतलब जो आपका ए एटम है उस जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स अटैच्ड हैं, एलिमेंट्स अटैच्ड है, उनकी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है
बॉन्ड एंगल भी सिमिलर होगा आपका। अभी नॉन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या आता है, किसी को ये बता सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा इसके अंदर? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि नॉन इक्विवेलेंट का टर्म का मतलब क्या होगा इसके अंदर? मैम Maybe परसेंटेज क्या करेक्टर बोलते के हैं? बेसिस है क्या Maybe एस और पी like- परसेंटेज करेक्टर? वन बाय वन। जैसे हमने देखा अभी BeF2 का देखा, उसमें हमारे पास इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स थे। BF3 देखा, sp2, CH4 देखा, sp3। ऐसे आपके और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो SF6 है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी sp3d2। तो उसमें सबकी बॉन्ड लेंथ क्या है? सिमिलर है। नॉन इक्विवेलेंट का कोई एग्जांपल फिर मुझे बताओ। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब आपको पता लग गया कि वो डिफरेंट होंगी। अब डिफरेंट कैसे होंगी कोई समझा सकता है? हाँ बोलो चंदन, आप कुछ कह रहे थे। मैम मैम CH4 परसेंटेज एस and और पी करेक्टर की बात कर रहा था बॉन्ड में। परसेंटेज बॉन्ड कैरेक्टर, ये क्या होता है? मैम मैं परसेंटेज एस पी करेक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा SP कैरेक्टर बोल रहे हो? हाँ तो बताओ ना ठीक से। एग्जाम्पल नहीं याद मेरे को कोई। चलो Ma'am, in non-equivalent, the bond angle is different. ओनली बॉन्ड एंगल Like इज we can डिफरेंट। we can take an example of trigonal bipyramidal. वेरी गुड, वेरी गुड। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिड में लेट्स से यू हैव योर दिस मॉलिक्यूल। अब बताओ इससे। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राइगोनल बायपिरामिडल? तुम ठीक बोल रही हो मौलिक श्रीवास्तव, तुम ही बोल रहे हो ना? Ma'am sp3d. sp3d। Ma'am, Shweta Kumare. श्रद्धा, ओके। मैं सॉरी आवाज नहीं पहचानी, मुझे एक्चुअली बैक करके देखना पड़ता है। पावर पॉइंट का ये कम बंद करना पड़ता है, इसलिए मैं आवाज एक्सपेक्ट करती हूँ कि कौन बोल रहा होगा ये। आई एम सॉरी। ओके, या तो sp3d होगी या dsp3 होगी, जो भी है। That is the correct hybridization of the trigonal bipyramidal. Okay, so here bond angles are not equivalent. That is what you are saying. Bond angles are not equivalent. आपने ज्योमेट्री बिल्कुल ठीक बताई है कि in case of your trigonal bipyramidal, your bond angles जो हैं they will not be equivalent. Equivalent नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? There will be 3 strong equatorial bond। ये आपका equatorial bond है, ठीक है। लेट्स से इनको ये आपका इस तरीके से कह सकते हो कि जो आपका ये वाले जो बॉन्ड्स हैं आपके इक्वेटोरियल प्लेन में, तो देयर विल बी 3, यू कैन नोट इट डाउन, देयर विल बी 3 स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं? sp2 ट्राइगोनल ऑर्बिटल्स। So there will be 3 strong equivalent bonds, equatorial bonds having sp2 trigonal orbitals, which is formed by, आप कह सकते हो 1 s orbital, वो एक s orbital है, एक px है और एक आपका मान लो py orbital से बना हुआ है। And there will be 2 weaker axial bonds, ठीक है, जिनमें हमारे पास क्या है? लीनियर ऑर्बिटल्स है। तो एक d ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। तो ये ट्राइगोनल ऑर्बिटल है, यहाँ पे हमारे पास लीनियर ऑर्बिटल्स हैं ये, which is formed by pz and let's say dz square, ठीक है। So in case of trigonal bipyramidal geometry, you have bond angles non-equivalent or bond angles are not equivalent. There will be 2 things which you have to understand. There will be 3 strong equatorial bonds, right? 3 strong equatorial bonds, 1, 2 and 3 strong equatorial bonds having or you can say involving sp2 trigonal orbitals.
ये जो आपका डी sp3d है, तो इसमें से आपका एक s एंड 2 p ऑर्बिटल्स विल बी इन्वॉल्व. sp2 trigonal orbitals will be involved and they will be stronger, whereas the other two axial bonds, or you can say you have two shorter bonds, weaker कह लो या shorter कह लो, मतलब shorter मतलब कि weak, weaker axial bonds will be there involving your dp linear orbitals in which your pz and dz square orbitals are being involved. ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल है. इसमें एको ज्योमेट्री होती है. एको ज्योमेट्री का एग्जांपल एक्चुअली कम डिस्कस होता है, बट मैं आपको बता देती हूँ. दूसरी ज्योमेट्री आपकी होती है स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल इस केस में भी क्या है, इसमें आपकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होती है. हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल की हम बात कर रहे हैं. स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल में क्या है, इट इज इसमें हमारी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट है. बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ भी हमारी क्या है, डिफरेंट है. ठीक है. सो इसमें हमारे पास क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है स्क्वायर पिरामिडल की. sp3d2. sp3d2 होती है. नहीं, sp3d2 किसकी होती है, 3 4 5 6 6 किसकी होती है, dsp2. वेरी गुड. dsp2 किसने बताया है, मैम स्क्वायर प्लेनर की होती है ये तो, dsp2. तो इसके अंदर हमारे पास dsp3 कह रहे हो. dsp2 is for square प्लेनर. प्लेन. स्क्वायर प्लेन, हाँ स्क्वायर प्लेनर कह लो. और इसमें एक और हमारे पास ऑर्बिटल होगा, दैट इज अ pz ऑर्बिटल. दैट इज dsp2 जो आपका विद इन अ प्लेन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 एंड देयर इज अ वन मोर ऑर्बिटल दैट इज अ pz ऑर्बिटल व्हिच इज एक्सियल जो होता है. जैसे हमने इसमें बाइफरकेट किया है ना, देखो इसने हमारे dsp3 या sp3 जो भी कह लो, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल जो भी कह लो, तो इसे हमने ब्रेक किया. इसे कैसे ब्रेक किया, sp2 आपका sp2 और p dz स्क्वायर इसमें ब्रेक किया है ना, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इसे ब्रेक किया है. कैसे हमने ब्रेक किया है, मतलब कि ये है कि दिस इज स्क्वायर प्लेनर में आपके dsp2 है स्क्वायर प्लेनर में, यानी ऑल दीज 4 ऑर्बिटल्स एंड वन मोर ऑर्बिटल इज देयर दैट इज एक्सियल पोजीशन में, दैट इज अ pz. इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है जो प्लेनर में है दैट विल बी डिफरेंट, और जो pz वाला एक्सियल में है उसकी आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी. ठीक है. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेन, दैट इज दिस थिंग dsp2, तो 2 + 1 + 1 4 एंड pz ऑर्बिटल इन एक्सियल. तो इनकी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लो या बॉन्ड लेंथ कह लो, वो डिफरेंट होती है. तो ये दो मेन एग्जांपल्स हैं. अगर आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो यू विल फाइंड, जैसे CH3Cl होता है, तो CH3Cl में भी हमारे पास क्या है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ विल नॉट बी सेम. आपका मान लो ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म कर रहा है, तो आपका CH बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट और CCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है. तो CCl वाला बॉन्ड दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है. एंड जो हाइड्रोजन से अटैच है दैट बॉन्ड विल बी डिफरेंट. सो आप इसे नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह सकते हो. मैम इक्विवेलेंट सेट CH3Cl ऑफ की तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाँ बोलो, इसकी कह रहे हो? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 क्या, CH3Cl की. हाँ CH3Cl तो हमारा टेट्राहेड्रल ही हो गया ना. यस मैम. हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ. यहाँ पे मैं आपको जैसे CH, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन डिफरेंट बुक्स यू विल फाइंड दिस एग्जांपल आल्सो. CH3Cl का भी एग्जांपल है जिसमें टेट्राहेड्रल ही है. ये मैं मना नहीं कर रही हूँ. यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर भी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी, मतलब और बॉन्ड एंगल भी इवन डिफरेंट होगा. आपका HCH वाला बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू CLCH बॉन्ड एंगल से. समझ रहे हो? और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगा. CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना. CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू योर CH बॉन्ड.
and bond angle of ClCH will be different as compared to HCH. समझ रहे हो? ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाला बॉन्ड एंगल विल बी डिफरेंट, दे विल नॉट बी सेम. इन तरह के एग्जांपल्स जो मैंने आपको 3 बताए हैं, एक स्क्वायर पिरामिडल का, एक CH3Cl वाला, और एक आपको इससे पहले जो बताया है मैंने that is trigonal bipyramidal का. So in this case they will have different bond angles and bond strengths. और bond strength का different होने का मतलब bond length भी आपकी different होगी, they will not be same. तो इन तरह के hybrid orbitals को non equivalent set of hybrid orbitals कहते हैं. Equivalent means that they have similar energies. Similar energies means that they have equal bond strength, equal bond angle, right? उनका bond angle भी same है, bond strength भी same है, equivalent में everything is similar. जैसे CH4 है, in case of CH4 your bond angle you know कि उसका जो standard bond angle है वही रहेगा, bond strength will be same CH4 में. या फिर आपका BF3 है, that will remain the same. But in case of these examples, जैसे trigonal bipyramidal है, और आपका ये trigonal bipyramidal, square pyramidal, and this CH3Cl, in this cases your bond strength will be different and bond angle will also be different, or bond strength different and the bond length will also be different. So this is a non-equivalent set of hybrid orbitals, and this is very important from examination point of view. They will simply ask you that give what are equivalent and non-equivalent hybrid orbitals, give some examples or explain with some examples. So you can note down this question. मैम फिर हम यूँ भी कहते हैं कि टेट्राहेड्रल में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है. हाँ, तो वो CH4 में होता है, हर किसी केस में नहीं होता. अमोनिया वाटर में नहीं होता, अमोनिया में नहीं होता, हर केस में नहीं होता ऐसा. क्यों कहते हैं? दैट इज अ स्टैंडर्ड एंगल. लीनियर का एंगल 180 है, वो स्टैंडर्ड एंगल है. बट आपका टेट्राहेड्रल में एंगल कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन वो लोन पेयर है या सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हो. क्या पूछ रहे हो बबीता? इसका माइक कौन है बच्चे? CH3Cl वाला समझ में नहीं आया. मैं थर्ड एग्जांपल बता रही हूँ आपको. CCl, चलो यहाँ पे CCl लिखते हैं. This is a hydrogen, this is a hydrogen, this is a hydrogen. Here I am saying hybridization तो चलो sp3 है. अब मैं hybridization की बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं आपकी बात कर रही हूँ. Hybridization sp3 है, but इसमें bond length will be different. CCl bond is more stronger than CH bond, and the bond angle of CH, इसका bond angle will be different, और इसका क्या बोलते हैं, this bond angle will be different, and this bond angle, that is H, angle of HCH, ये वाला bond angle they will be different. So what I am trying to tell here is that bond strength भी different है, bond angle भी आपका different है. इन तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जैसे sp3 में जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, they will not be same, they will be different. फिर मैम अगर CCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फिर रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो Cl वाला बॉन्ड टूटता है नॉर्मली, अल्कोहल्स वगैरह या फिर किसी के भी साथ रिएक्शन करवाते हैं, H वाला टूटना चाहिए फिर तो. अगर CHCl3 में अगर आप रिएक्शन कराते कौन सा बॉन्ड टूटा? हाइड्रोजन वाला. आई मीन मैम CH3Cl में, हाँ, क्लोरीन वाला. तो वो डिपेंड करता है ना आपका कि तुम कह रही Cl रिलीज होता है तो आपका CH3 प्लस बनता है. यस मैम. CH3 प्लस बनता है तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अप्रोच कर रहा है ना इसको. इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टडी करते हो इस चीज को. ऑर्गेनिक में बात तो तुम ठीक कह रही हो कि CH3Cl में हमारे पास जो है कौन सा Cl निकलता है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है. तो मुझे कोई रिएक्शन दिखाओ, उस रिएक्शन को देख के मैं बता सकूं. रिएक्शन याद आ रही है अभी? मैम इसमें अगर अल्कोहल डाल देंगे ROH टाइप का कुछ तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ना बच्चे उसमें. फिर मैम H को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ना, तुम कंफ्यूज किस चीज से हो रही हो तुम? मैं समझ गई तुम्हारा डाउट क्या है. तुम्हारा डाउट ये है कि CH3 जो आपका इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वही तो सब्स्टिट्यूट होगा.
CH3 और Cl में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, OH आपका जो है नेगेटिव आ रहा है, अल्कोहल में OH नेगेटिव आ रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूट तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही होगा। आपका हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा ना है कि वो क्लोरीन को रिप्लेस नहीं होने देगा। समझ रहे हो? मैं इसमें आपको ये बताना चाह रही हूँ कि तुम स्ट्रॉन्गर से देख रही हो, पर मैं यहाँ पे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से बता रही हूँ। यहाँ पे तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर कोई एक तरीके से इतना स्पेस अगर किसी के पास है तो इतने सेम साइज का कोई चीज उसे सब्स्टिट्यूट कर पाएगा ना। मतलब कि अब कैसे बताऊं तुम्हें, मतलब कि सिमिलर एटम रिप्लेस हो रहा है, सिमिलर चीज रिप्लेस होती है सिमिलर चीजों से, इस तरीके से समझ लो। तो क्लोरीन तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पे, और OH क्या है तुम्हारे पास, ये भी नेगेटिव है इसके ऊपर चार्ज, तो Cl OH से ही तो रिप्लेस होगा। CH से कैसे हो जाएगा, इवन साइज, चलो साइज तो चलो छोड़ो OH का, बट इसके अंदर हमारे पास Cl ही रिप्लेस होगा OH से। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर सकता है जब वो सिमिलर इन नेचर होगा कुछ इस तरीके से, तो इसलिए Cl ही रिप्लेस होगा OH से, H रिप्लेस नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ तो ये तुम देख रही हो इस तरीके से कि मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि हाइड्रोजन को निकलना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि नेगेटिव ऑफ दिस ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर नेगेटिव, तो तभी वो जो बॉन्ड नया फॉर्म होगा दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? आ गया मैम। हाँ, तो इसलिए ये हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ना अल्कोहल के साथ इसमें। यस मैम। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आज की क्लास का आई थिंक हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। आपकी कोई क्लास नहीं इसके बाद? है मैम, किसकी है? AECC।